الصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و طبیب قلوبنا محبوب رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا مولا الثقلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین ولعن اللہ علی غاصبین حقوقہم ولعن اللہ علی منکرین فضائلہم ومسائلہم وشجاعتہم وسخاوتہم وولایتہم وعنایتہم وعطشہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وقالہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى مومنین گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد کی مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ مل جل کر ایک بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں آپ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محترم سامعین مجلس، محترم عزاداران مظلوم کربلا، بہت مختصر سی گفتگو آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بس ایک رسمی طور پر، لیکن ہم پہلے یہ جان لیں کہ ہم آج جو تقریر کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں یہ ماہ مبارک رمضان ہے، اور ماہ مبارک رمضان کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی عمل کرو اس کا 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ ایک مجلس کرنے پر 10 مجلسوں کا ثواب ہے، ایک درود پڑھنے پر 10 درود کا ثواب ہے، ایک نعرہ لگانے پر 10 نعروں کا ثواب ہے، ایک بار یا علی کہنے پر 10 بار یا علی کہنے کا ثواب ہے۔ اور چونکہ ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے، تو قرآن کی بہار رمضان ہے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ قرآن خوانی میں بھی آئیے، کیونکہ پورے سال آپ مصروف رہتے ہیں، اللہ آپ کو اور مصروف رکھے اور آپ اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کمائیں، لیکن ایک مہینہ ہم اللہ کو دیں، اور تاکہ ایک مہینہ ہم اللہ سے جڑ جائیں۔ اور کیونکہ یہ جو رمضان ہے نا، قرآن کی بہار رمضان، اس میں ایک آیت پڑھنے کا ثواب ایک قرآن کے برابر ہے، ایک آیت پڑھنے کا ثواب ایک قرآن کے برابر ہے۔ اب سوال کر سکتے ہیں مومنین کا مولانا ہمیں تو قرآن پڑھنا آتا نہیں ہے، تو پھر میں نبی کی حدیث بھی پڑھ دوں کہ قرآن پڑھنے والا اور قرآن سننے والا دونوں ثواب کے برابر مستحق ہیں، مگر شرط یہ ہے قرآن سنیں، نہ کہ موبائل چلا کر اپنے دوسرے ریلس دیکھتا رہے کہ مولانا تو قرآن پڑھ رہے ہیں، میں تب تک موبائل چلاتا رہوں اور ریلس دیکھتا رہوں اور یہ کرتا رہوں، دوسرے کام میں مصروف نہ رہے۔ ٹھیک ہے، قرآن سنے تب ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے کہ وہ مطلب دوسرے کام کرتا رہے گا تو ثواب ملے گا۔ عزیزان گرامی، دیکھیے اللہ نے ایک آیت قرآن کے اندر نازل کی کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے حبیب یہ جو آ رہے ہیں نا، کبھی تمہیں سونے کا لالچ دیتے ہیں، کبھی تمہیں پیسوں کا لالچ دیتے ہیں، کبھی تمہیں حکومت کا لالچ دیتے ہیں، جس چیز کا بھی تم کو لالچ دیتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ دینا چاہتے ہیں وہ دینا چاہتے ہیں، ان سے کہو مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس اگر تم چاہتے ہو تو میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ سنی ہوئی آیت ہے نا آپ کی پوری، ہے نا؟ قرآن کو جتنی بار سنا جاتا ہے اتنا ایمان تازہ ہوتا ہے کہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ دیکھیے کوئی بھی بات ہوتی ہے نا، اس کا دیکھیے بات کا مطلب وہی رہتا ہے، لیکن اگر جب کہنے والا آگے بڑھتا ہے تو اس کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ مثلا ایک چھوٹے بچے نے آپ سے کہا نماز پڑھو، معمولی بات ہے۔ ایک گھر کے بزرگ نے کہا نماز پڑھو تو تھوڑا ڈر محسوس ہوا، اس نے بھی کہا تھا نماز پڑھو،
घर के बड़े ने भी कहा नमाज पढ़ो, डर महसूस हुआ, ठीक है। अब गांव के मुखिया ने कह दिया कि नमाज पढ़ो, तो अब और डर महसूस हुआ कहीं ऐसा ना हो कि हमारा वजीफा बंद हो जाए, नमाज अल्लाह के लिए ना पढ़े, मगर कम से कम मुखिया के लिए पढ़नी पड़ेगी हमको, जो हमारे शहर का मुखिया है उसके लिए तो पढ़नी पड़ेगी हमको। तो जैसे जैसे बात कहने वाले आगे बढ़ते रहे, ऐसे ऐसे बात का मेयार बढ़ता चला गया। अब मौलवी साहब ने कहा नमाज पढ़ो, तो अब लोग कहने लगे अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो भाई हो सकता है मौलवी साहब कहीं मस्जिद में हमें टोक दे, किसी जगह पे टोक दे। यानी बात एक थी। अब मान लीजिए इमाम का हो रहा है ज़हूर, एक सलवात पढ़े वेलकम इमाम का हो रहा है ज़हूर। अब इमाम आकर कहें कि नमाज पढ़ो, तो अब ये जो है इताअत है, चाहे गर्दन जुदा हो जाए मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी। बात वही थी, कहने वाले की वजह से बात की औकात बढ़ गई है। भाई कहने वाला कहता चला गया, जितना बड़ा कहने वाला था उतनी ज्यादा फजीलत मिलती चली गई। अब हम कहें कि अली के लिए अगर हम कोई फजाइल पढ़े तो आप बिल्कुल न मानना, लेकिन अगर कहने वाला सबसे बड़ा हो और वो कहे कि ये जो अली है इसकी आंख मेरी आंख है, इसका हाथ मेरा हाथ है, भाई जितना कहने वाला होगा बड़ा होगा उतनी बात की फजीलत बढ़ती चली जाएगी। सुनिए, हमने कसीदे नहीं पढ़े हैं, कुरान ने कसीदे पढ़े हैं। कुरान ने अपनी मर्जी से नहीं पढ़े हैं, बल्कि अल्लाह ने कुरान के अंदर दर्ज किए हैं कसीदे मौला के, कुरान के अंदर दर्ज है। मुझे एक जंग का मंजर याद आ रहा है, उस जंग का नाम है जंगे ज़ातुस सलासिल। ये याद रहना चाहिए, है ना, जंगे ज़ातुस सलासिल। अब मैं बताऊं कि अल्लाह के नजदीक फकत अली ही मोतबर नहीं है, जो चीज अली से मंसूब हो जाती है वो भी मोतबर है। जंगे ज़ातुस सलासिल वो है कि जिस जंग के अंदर अल्लाह ने अली के कदमों के घोड़े के कदमों की कसम खाई है। फिक्रा सुनिएगा भाई, जंगे ज़ातुस सलासिल जब हो रही थी, अल्लाह का पैगाम आया, मेरे हबीब वो जो आ रहे हैं 12,000 का लश्कर लेकर आ रहे हैं, आप भी बढ़िए आगे। नबी अल्लाह ने तैयार किया कि भाई तुम भी चलो, इनको भी बुला लिया, सब आ गए। ये दो थे, बाकी तीसरा था उमर इब्न आस था, वो भी साथ में था। तो कहा भाई चलो, 4,000 का लश्कर इनको दिया, इनको 4,000 का लश्कर दिया, कह जाओ। ये गए, ना तो खुद लड़े ना लड़ने दिया। अब फिक्रा सुन लीजिएगा, ना खुद लड़े ना लड़ने दिया इन्होंने। मैं तो ऐसे पढ़ूंगा, आप कहीं भी पढ़वाइए मुझसे, मेरी तो आदत है, मेरी आदत है, मैं नहीं करूंगा कॉम्प्रोमाइज। आप मुझे वहाँ पढ़वाएंगे वही पढ़ूंगा मैं, जो पढ़ना है मुझे। इनको दिया, ना खुद लड़े ना दूसरों को लड़ने दिया। अब दूसरे वाले को दिया, उनका भी नतीजा यही हुआ। अब ये जो उमर आस था, इसने कहा भाई मैंने बड़ी जंगों में लड़ाइयाँ की हैं, ऐसा है वैसा है, मुझको भेजिए। नबी अल्लाह ने कहा कि भाई तुम चले जाओ। ये भी गए और ये भी वापस आ गए। अब ये जाते रहे वापस आते रहे, तो नबी पर आ गई मुश्किल, मगर नबी वो है जो मुश्किलों में घबराता नहीं है, खुश होता है, क्योंकि नबी जानते हैं कि अगर मुश्किल है, रोजा खोल कर आए हैं ना, खाना खा लिया है ना, अब कंजूसी ना करना। अगर रोजे की हालत में होते मैं कुछ नहीं कहता आपसे, मगर अब मैं हक मांग रहा हूँ आपसे। अब कहा भाई अली को भेजो, अली को तैयार किया गया। हर जंग की तरह अली को ज़ातुस सलासिल के लिए तैयार किया गया। अली चले, उमर आस आगे बढ़ा, कहा या अली इस रास्ते से ना जाइए। कहा क्यों? रास्ते में भेड़िए हैं, रास्ते में शेर हैं। अली ने एक ना सुनी, अली ने एक ना सुनी। अब ये गए एक बुजुर्ग के पास, आप समझाइए। बुजुर्ग ने आके समझाया, अली ने उनकी भी ना सुनी। ये गए तीसरे के पास, कहा भाई आप समझाइए। उन्होंने समझाया, अली ने उनकी भी ना सुनी। अब जुमला कहूँ, आप सबकी जानिब से फिक्रा कहने जा रहा हूँ कि अली ने 3 की ना मानी। अली ने 3 की ना मानी। भाई हम भी तो अली के चाहने वाले हैं, वो 3 की नहीं मानते, हम 3 को नहीं मानते। सलवात पढ़े मिलके मोहम्मद के मानने वाले, हम भी मौला के चाहने वाले हैं। मौला गए के बाद जंग की, और जैसे ही जंग की कुदरत ने जलाल में कलम उठाया, कुरान के अंदर लिखना शुरू कर दिया कि मुझे उस जंग में घोड़े के कदमों से दौड़ते हुए घोड़ों के कदमों की कसम, वो कदम
जो जब जमीन से टकराते थे तो चिंगारियां उठती थी, चिंगारियां उठती थी। घोड़े की कसम खाई है अल्लाह ने, अली के घोड़े की कसम खाई है। मौलवी को यही गम खा गया कि हमारे लोगों ने ना जाने क्या क्या खा लिया, कोई आयत ना आई, अल्लाह अली के घोड़े के कदमों की कसम खा रहा है। घोड़े के कदमों की कसम, घोड़े के कदम इतने मोतबर हैं तो अली के कदम कितने मोतबर होंगे। सुनिए, अली के कदम इतने मोतबर थे कि एक कदम इधर रखा, दूसरा उधर, कुरान खत्म। ये कदम है, ये कदम है अली के, ये कदम है। फिर नबी अल्लाह का कौल भी है, अली अगर मुझे उम्मत के गुमराह हो जाने का खौफ ना होता तो मैं तुम्हारे बारे में वो बयान करता, लोग तुम्हारे कदमों की मिट्टी उठाते, खाक के बतौर इस्तेमाल करते, कदमों की मिट्टी उठाते, खाक के बतौर इस्तेमाल करते। भाई सुनिए ना, अल्लाह क्या कसीदे पढ़ रहा है। अल्लाह कह रहा है कि मोहम्मद जो है अल्लाह का रसूल है, ये कहा। उसके बाद अल्लाह ने आगे बढ़ाई बात, कहा जो मोहम्मद के साथी है ना, ये काफिरों पे बड़े सख्त हैं, आपस में रहमदिल हैं, और इनके चेहरे रोशन हैं रुकू और सुजूद करने की वजह से। ये जो साथी हैं जनाब रसूल खुदा के, ये क्या है, ये कुफ्फार पे सख्त हैं, आपस में रहमदिल हैं, इनके चेहरे रोशन हैं। क्यों? रुकू करने की वजह से और सजदे करने की वजह से। आयत खत्म नहीं हुई, आयत ने कहा इनकी मिसाल तौरात में भी दी गई है और इंजील में भी दी गई है। भाई अल्लाह ने कितनी चीजें बताई। अल्लाह ने कहा कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, है ना। उसके बाद कहा इनके जो साथी हैं वो सख्त है कुफ्फार पे। मुझे बताइए साथी कौन होगा? वो जो बढ़ बढ़ के हमले कर रहा है, जो कुफ्फार से डर के भाग रहा है। इनके चेहरे रोशन हैं। अब भाई कैसे पहचाने चेहरा रोशन है? कैसे पहचाने किसका चेहरा रोशन है? तो उसका ही चेहरा रोशन है जिसके बारे में अल्लाह ने कहा कि सब कुछ मिट जाएगा मगर अल्लाह का चेहरा बाकी रहेगा। भाई चेहरों को पहचानना आज के दौर से अच्छा तो कोई दौर ही नहीं है। आज के दौर से अच्छा कोई दौर ही नहीं है। भाई क्यों? आप हमारे उलमाए किराम को देखें और उनके मुफ्तियों को देखें। भाई किसी भी मर्दा की तस्वीर उठा के देखें तो देखने का दिल चाहता है। क्यों? अली के इश्क का नूर है, तवज्जो है? आप आगा सिस्तानी का फोटो देखें तो देखने का दिल चाहेगा, आगा खुमैनी का फोटो देखें देखने का दिल चाहेगा, आगा खामनाई का फोटो देखें आप तस्वीर देखें तो देखने का दिल चाहेगा, आगा तक़ी वर्जदी का आप फोटो देखें, वही तो खुरासानी की तस्वीर देखें, आप देखते रहेंगे देखते रहेंगे। इतना नूर है देखते रहेंगे। अब जरा उधर चलो, किसी की आंख टेढ़ी है, किसी का मुंह टेढ़ा है। ये अली का बुग़्ज़ है भाई, ये अली का बुग़्ज़ है। अली का बुग़्ज़ होता है तो चेहरों पर नूर आता है, और अगर अली का इश्क होता है चेहरों पर नूर आता है। अली का बुग़्ज़ नूर छीन लेता है, चेहरों पर फिटकार बरसती है। अब मेरे साथ जुड़िए, बस खत्म कर दी मैंने तकरीर। तो अली के कसीदे पढ़े हैं अल्लाह ने, हम पढ़े तो मार दो हमको, कोई मसला नहीं है, लेकिन अली के कसीदे पढ़ने वाला है अल्लाह। और अली के कसीदे लिखे हुए हैं कुरान के अंदर मौजूद है, कुरान के अंदर मौजूद है अली के कसीदे। अली ना होते तो कोई भी जंग फतह ना होती, कोई भी जंग फतह ना होती, चाहे वो जमल हो, चाहे नहरवान हो, चाहे खंदक हो, चाहे खैबर हो। मैं एक एक जुमला पढ़ता चल रहा हूँ, एक एक जुमला सुन लीजिएगा। भाई नबी के जिंदा रहने तक जो जंगें हुई हैं, नबी के जाने के बाद कौन सी जंग हुई है? जंगे सिफ़ीन, जंगे और जमल और जंगे नहरवान, ये सब जंगे हुई है ना। जंगे जमल वो भी झूठ की बुनियाद पर, सिफ़ीन इसका बदला है, जमल का बदला है, नहरवान इसका सिफ़ीन का बदला है। यानी ये बदलों में जंगे हुई हैं, बदलों में। ठीक है, मौला अली ने एक जंग पता की। अब आया सिफ़ीन का दौर। जब सिफ़ीन का दौर आया तो उसमें पूरा आपने सुना हुआ है कि कैसे मालिक अश्तर मार रहे थे, कैसे हज़रत अब्बास मार रहे थे, सब आपका सुना हुआ है। लेकिन एक मंजर वहाँ क्रिएट हो गया, वो देखिए कैसे। जैसे ही हमला करने के लिए मुसलमान आगे बढ़े, यहाँ देखिए मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ इस बात को समझाना, बहुत ज़रूरी बात। जैसे ही मुसलमान आगे बढ़े कि उधर मुखालिफ लश्कर ने नेज़े बुलंद किए और नेज़ों के ऊपर कुरान था। अब इन्होंने कहा कि या अली बस रुक जाइए, अब जंग ना कीजिए। क्यों? किस लिए? इसलिए नेज़ों पर कुरान आ गए हैं, नेज़ों पर कुरान आ गए हैं। मौलाना का खामोश, वो खामोश कुरान है, मैं बोलता कुरान हूँ। वो खामोश
खामोश कुरान है। अब बताओ खामोश कुरान की सुनोगे या बोलते कुरान की सुनोगे? अब अगर आप या अली का है और आपको कोई काफिर का है तो परेशान ना होना। मैं बताऊं आपको, आगे का जुमला सुनिए। कह जब भाई मारो इनको, क्यों मारो? इसलिए मारो क्योंकि ये कुरान जो बुलंद कर रहे हैं ये इस्लाह के लिए नहीं कर रहे हैं, फसाद के लिए कर रहे हैं, है ना। तो जिन लोगों ने मौला अली की बात नहीं मानी वो क्या कहलाए? खारजी। ये कहलाए खारजी। कहने वाले थे ये कि भाई हम जो है शिया हैं, मौला के चाहने वाले, असल में ये खारजी थे। मौलाना का वो जो है वो है खामोश कुरान और मैं हूँ बोलता कुरान। कया अली आप कुरान के होते हुए भी इनसे लड़ रहे हैं, आप काफिर हो गए। ये जुमला मौला के लिए था, हमें नहीं कहा, रसूल को नहीं कहा, बल्कि कहा कि आप काफिर हो गए हैं, आप काफिर हो गए हैं। जो मुसलमान आपके नबी के वसी को काफिर कह सकता है वो नारा लगाने पे आपको काफिर क्यों नहीं कह सकता है? क्यों नहीं कह सकता है आपको काफिर? बिल्कुल कह सकता है ना। तो इन चीजों को भी आप समझें। बस एक जंग नहरवान हुई, उसमें मौला ने पहले पेशन गोई कर दी थी। कभी देखो उनके 10 पूरे नहीं बचेंगे और हमारे 10 पूरे नहीं मरेंगे, यानी 10 से ज्यादा लोग वहां जिंदा नहीं रहेंगे और यहाँ 10 से ज्यादा कत्ल नहीं किए जाएंगे। ऐसी जंग होती रही। बस बात खत्म कर रहा हूँ मैं। जंग होती रही। एक जंग में ऐसा हुआ कि खूब घमासान जंग हो रही है। इधर से सहाबा तलवारें चला रहे हैं, बावफा सहाबा जो थे वो तलवारें चला रहे हैं और उधर से मौला अली तलवारें चला रहे हैं। तो जब जंग हो गई, मौला अली के साथ लड़ रहे थे जनाब मालिक अश्तर। बस ये फिक्रा और जहमत तमाम कर रहा हूँ आपको। जनाब मालिक अश्तर जंग कर रहे थे मौला अली के साथ। कि जंग करते करते जब जंग खत्म हो गई उसके बाद तो जब लाशें गिने गए कि कितनों को मारा, तो जितने मौला अली ने मारे थे उससे एक कम मालिक अश्तर ने मारा था। जितने मौला अली ने मारे थे उससे एक कम मालिक अश्तर ने मारा था। मालिक सोचने लगे काश एक और मार देता, आज अली के बराबर हो जाता। एक और मार देता, आज अली के बराबर हो जाता। अली वो है जो जहनों को पढ़ता है, जो दिलों की खबर रखता है। मालिक क्या सोच रहे हो का मौला कुछ नहीं कर, नहीं बताओगे तब भी खबर है, तब भी खबर है। क्या तुम ये सोच रहे हो एक और मार देता अली के बराबर आ जाता? कहा देखो मालिक, अगर तुम एक मुझसे ज्यादा मार देते तब भी मेरे बराबर ना आते। किस लिए? इसलिए तुम सामने वाले को मारते हो मगर मैं देखता हूँ इसकी नस्ल में कोई मोमिन तो नहीं है। हैदरी 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 आवाज़ बुलंद तर सलावत। हमारी तलवार फकत चलती है, मेरी तलवार देख देख कर चलती है। अगर किसी की नस्ल में 70 नस्लों में कोई मोमिन है तो छोड़ दिया, 70 नस्लों में छोड़ दिया अली ने। इतना रहम दिल है। तो आप खुद सोचिए, जो अली अपने दुश्मन को इसलिए छोड़ देता है कि इसकी 70वीं नस्ल में कोई मोमिन आने वाला है ना, उसको कत्ल नहीं करता है, वो अली हमें कब्र में अकेला क्या छोड़ सकता है? कभी नहीं छोड़ेगा। दुनिया को इसी बात का तो गम है कि उन्होंने उनको थामा कि जो अपनी कब्र का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं, और हमने उसका दामन थामा है जो हमारी कब्र में भी आएगा, आपकी कब्र में भी आएगा, सबकी कब्र में। तो ये तो अकली बात है ना। दोस्ती किससे की जाए? उससे की जाए जो दुनिया में फ़ायदा पहुंचाए, या उससे की जाए जो आखिरत में फ़ायदा पहुंचाए? आवाज़ आएगी तो उससे दोस्ती की जाए कि जो आखिरत में फ़ायदा पहुंचाए, और आखिरत में फ़ायदा पहुंचाने वाले फ़कत अली हैं। अली हैं, जनाब ज़हरा हैं, इमाम हुसैन हैं। इनके कसीदे अल्लाह ने कुरान में बयान किए हैं। लोगों ने इनकी बराबरी करने की वजह से कि इनके बराबर आ जाए, इनके कत्ल के मंसूबे तैयार किया है, इनको मार दिया गया है, इनको कत्ल कर दिया गया है। अच्छा, अरब का दस्तूर तो यही है कि मार दो, कत्ल कर दो, मगर अरब का दस्तूर ये कब से हो गया कि किसी की चादर छीन लो, किसी के तमाचे मारो, किसी के घर वालों को असीर कर लो? ये दस्तूर तो नहीं है ना। बस अज़ादारों, एक दो जुमले मसाइब के और ज़हमत तमाम। इंशाअल्लाह मैं बहुत सारे मौज़ूआत हैं जो आपके सामने रखने हैं।
علی کی دشمنی جب کربلا پہنچی ہے اور امام حسین کے قتل کے بعد ان کے گھر والوں کو اسیر کیا گیا ہے، جب قید کیا گیا ہے نا، تو کیفیت کیا تھی؟ کیفیت سن لیجیے آپ۔ کیفیت یہ تھی کہ جب کوفے میں یہ قافلہ پہنچا ہے، جناب زینب نے جناب فضہ سے کہا کہ اے فضہ، ان لوگوں سے کہو کہ اب تو ہم دربار کے اندر آ گئے ہیں نا، اگر ہو سکے تو ہماری ردائیں واپس کر دو، اجرکم علی الزہرا، ہماری ردائیں واپس کر دو۔ کہ شمر کی آواز آئی کہ جب ہم نے تمہاری بازاروں میں ردائیں نہیں دیں تو ہم یہاں تمہاری ردا کیسے دے سکتے ہیں؟ تمہیں بنا ردا کے ہی رہنا ہے۔ جناب زینب نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، اگر تم ردا نہیں دینا چاہتے ہو تو کم سے کم ہمارے ہاتھ کھول دو، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ کو چھپا کر پردہ کریں گے، اپنے بالوں سے اپنا پردہ کریں گے۔ عزاداروں، کیا کیا مصیبتیں گزری ہیں، کیا کیا مصیبتیں گزری ہیں۔ جب یہ قافلہ دربار میں جانے والا تھا، جب پہنچا نہیں تھا، جناب زینب نے کہا کہ یہ تو کوفہ ہے، یہ تو کوفہ ہے، یہاں میرے بابا کی حکومت ہوا کرتی تھی، میں اس دربار میں کیسے چلی جاؤں گی؟ نہ جانے کتنے پہچاننے والے ہوں گے اور وہ مجھے دیکھ کے کہیں گے علی کی بیٹی کیا تمہاری یہی عزت ہے؟ علی کی بیٹی کیا تمہاری یہی توقیر ہے؟ کہتی ہے میں نہیں جاؤں گی۔ شمر نے سن لیا، ایک مرتبہ اپنا تازیانہ اٹھایا، جناب سید سجاد کی جانب پڑا۔ جناب سید سجاد نے پھوپھی کو دیکھا، وہ کہا پھوپھی اماں آپ کی مرضی، جیسے چاہے آپ جائیں یا نہ جائیں، مگر یاد رکھیں اگر آپ نہیں گئی نا تو یہ میرے پشت پہ بہت تازیانہ مارے گا۔ آواز آئی نہ شمر رک جا، میرے سجاد کو نہ مار، ارے میں دربار میں جاؤں گی۔ آواز دی حسین تو نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھ، آج تیری بہن کوفے کے دربار میں جا رہی ہے۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، اللہ کوئی غم نہ دے۔ بس ایک روایت سن لیجئے، ماہ رمضان ہے، ایک روایت سن لیجئے، ماہ رمضان ہے۔ کچھ دنوں کے بعد علی کا سر مسجد کوفہ میں 2 پارہ کر دیا جائے گا، مگر اس سے پہلے کا منظر عزاداروں یہ تھا کہ جب کوفہ پہنچے ہیں مولا کائنات تو اپنے گھر والوں کو لے کر گئے ہیں، جناب زینب کو لے کر گئے، جناب کلثوم کو لے کر گئے ہیں، امام حسن، امام حسین، جناب عباس، سب کوفہ میں پہنچے ہیں۔ اور کوفہ کے لوگوں نے کہا کہ یا علی ہم تو آپ سے درس لے لیتے ہیں مگر ہماری گھر کی جو عورتیں ہیں نا وہ کس سے قرآن پڑھیں؟ آواز آئی تم چاہو تو میری بیٹی زینب سے پڑھ سکتے ہو۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم آپ کی بیٹی زینب سے پڑھ لیں گے۔ تو عزادارو جب قرآن پڑھاتی تھی جناب زینب تو باقاعدہ جس نے حجاب سکھایا ہو اس کے حجاب کی کیا مثال ہوگی؟ کوفے کی عورتوں نے جناب زینب کو دیکھ کے حجاب کرنا سیکھا، روز حجاب میں آتی تھی۔ عزادارو بس یہ قیامت خیز فقرہ ہے، اس کے بعد زحمت تمام ہو رہی ہے۔ لوگ اور روز عورتیں آتی تھی، زینب سے قرآن پڑھتی تھی، واپس چلی جاتی تھی، روز آتی تھی زینب سے قرآن پڑھتی تھی، واپس چلی جاتی تھی۔ ایک دن عجیب منظر دیکھا کہ عورتیں آئیں، آنے کے بعد زینب کو دیکھا اور ایک چیخ مار کے ساری عورتیں باہر چلی گئی۔ علی نے پوچھا کیا ہوا؟ آواز آئی کہ جب ہم روز آتے تھے کبھی ایسا منظر نہ دیکھا، ارے آج زینب کے سر پہ حجاب نہ تھا، سر کھلا ہوا تھا، بال کھلے ہوئے تھے اور زینب رو رو کے کہہ رہی تھی اے کوفے کی عورتوں مجھے اس حال میں بھی پہچان لو، ایک دن میں اس کوفہ میں سر کھلے آؤں گی، ایسا نہ ہو کوئی مجھے پتھر مارے، کوئی صدقے کی کھجوریں پھینکے، کوئی جلتی ہوئی لکڑیاں پھینکے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، بذنب قضائہ و تسلیما لامرہ، الہی بحق زہرا و ابیہا و بالیہا و بنیہا۔ پروردگارہ تو جب واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، اس کے صدقے میں ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، جہاں جہاں خیال حیدر کرار ہے اس کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ اس مجلس اعزا کے صدقے میں ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، جو ہم سے جدا ہو گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، تمام ہمارے مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ جب تک تو تیرے رسول کے اہل بیت ہم سے راضی نہ ہو جائے ہمیں اس دنیا سے نہ اٹھا۔ بار الہا جب ہمارا وقت آخر ہو ہمیں دیدار آل محمد نصیب فرما۔ پروردگارہ جب ہمیں قبر میں اتارا جائے ہمیں امام حسین کی زیارت نصیب فرما، حضرت عباس کی زیارت نصیب فرما، حضرت علی اکبر کی زیارت نصیب فرما، جناب زہرا اور رسول خدا کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ عالم محشر میں جب تیری عدالت سجی ہو ہمیں شفاعت آل محمد نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمارے امام زمانہ السلام کو بہت تعجیل فرما، ہمیں مولا کے غلام
गुलामों में शुमार कर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक मरतबा सूरह 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर तमाम मरहूमीन मरहूमात और मोमिनीन मोमिनात की अरवाह को बख्श दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।